احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کا جنازہ اٹھا کے دے گا۔ احساس تجھے کربلا ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کا جنازہ اٹھا کے دے گا۔ اب آپ کے سامنے ذاکر محمد والے محمد شہنشاہی کربلا کے ذکر فضائل و مصائب بیان کرنے کے لیے سجاد علی اکبر صاحب جو شہنشاہ وفا، شہنشاہ قرآن، شہنشاہ محمد والے محمد دے گھر دے سونے سلطان کا علم برآمد کران گے جناب ذاکر سجاد علی اکبر صاحب۔ دعا حجت دور علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حق تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا اللہ عزت مرکہ بیان کا واسطہ چل کے آئے سنی شیعہ بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما۔ اگر تو زبان دی ہے میرے مولا نے آمین بابا کے بلند کہیے گا، کیونکہ یہ حقیقت آمین ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کائنات کا سب سے بڑا اور معتبر رسول میرا اور آپ کا آخری نبی بھی کیوں نہ ہو، اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ سے کہتا ہے بیٹی آمین کہو۔ اور معصوم فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگے اپنے مومنین بھائیوں کے لیے مانگے، نہ جانے کس کے منہ سے نکلے الفاظ کس کا مقدر ثواب ہے۔ تو جن کو مولا نے زبان دی ہے میرے مولا جو بے گھر ہے اسے گھر عطا فرما، مولا جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما، میرے مولا جس کے پاس کچھ نہیں اسے سب کچھ عطا فرما، میرے مولا مجھ کرنی سمیت جو بھی معصومین علیہ السلام کی نالین کی معرفت چاہتا ہے میرے مولا انہیں نالین کی معرفت عطا فرما۔ اس گاؤں، اس بستی، اس ویلج، اس پینڈ پہ خاص رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو دعاؤں کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے ذاکر امتیاز علی جعفری اور جو بھی وکی بھائی اولاد کے لیے میرے مولا جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، جن کی دعائیں دل میں ہیں، بس ایک چیز دل میں رکھیے گا، آج باب الحوائج کے علم کی شبی برآمد ہونے کو ہے۔ جس کے پاس بیٹا نہیں وہ بیٹا مانگے واسطہ دیکھے، جس کے پاس بیٹی نہیں بیٹی مانگے، کچھ بھی نہیں عزت سیدہ کی قسم سب کچھ مانگ لینا۔ اگلے سال سے پہلے بی بی عطا نہ کرے تو کمی نے پھر کربلا سے سجدہ کیا ہی نہیں۔ جو بھی دعائیں حج کے منتیں میرے دل میں ہیں، ذمے ہیں، آپ سب کی ہیں، مولا تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ کروڑہ دعاؤں کی ایک دعا کے وارث ازل کو اذن ظہور دے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور جلدی جلدی سبق سناؤں، یہ جوان ہے یہ آگے بیٹھے، یہ پوری جگہ کو فل کرے، آپ اٹھے۔ وہ ایک اظہر سرزیادی صاحب کا جوان جو ہے جوان اٹھے، بوڑھے جہاں سائیں آپ بھی اگر نفاست سے ناگوار ہو یہ جگہ کو فل کرے، یہاں پہ آ جائے، کیونکہ پھر بعد میں آنے والے جو ہے وہ سارا مجمع چیختے چلاتے آئیں گے، اور میں وہ خطیب نہیں کہ جو ادھر ادھر کے خیالات رکھ کے بات کروں، عشق والا ہوں، ایک ہی مستقیم پہ رہتا ہوں۔ دائیں بائیں دیکھا جیسے میری بات نہیں، تھوڑا جو تجھے تھوڑا جا کیوں آ جاؤ میں بال بیٹھے میرا بھائی، منبر دیکھ میرے بہانا جرم نہیں، منبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے۔ سوچ دے رہے ہو میں کی کہہ تسی سوچ دے رہے ہو میں کی کیا ہے کی نہیں کیا، جڑے حالے بھی جوان تھوڑا جا کے نہیں آ رہے، پھر انہوں نے ریکویسٹ بہت ہی بانا نہایت ہمبلی ریکویسٹ فار یو، تھوڑا تھوڑا آگے آئیں کیونکہ یہ جگہ یہ بھی فل کریں تاکہ میں آپ کو احسن طریقے سے سبق سنا سکتا۔ اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے؟ بسم اللہ۔ بڑے چند بندوں کی ہے لیکن خیر ایک میں انہیں بزرگ بھی مانتا ہوں
अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, आलिम दीन है, उनके कहने पे आप सबकी ज़ियारत हो रही है। मौलाना तनवीर हुसैन गदीरी साहब, पाक सैयदा उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वापस का तरस रहे, उनके तवस्सुत से आपकी ज़ियारत का शर्फ हो रहा है। जो मजलिस में है, तमाशाई नहीं है, वो बुलंद आवाज़ से दुरूद तिलावत फरमाइएगा। इजाजत है कि बातचीत कर ली जाए? सुबहाना फी कुरान अल मजीद व कौलहुल हक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा मुहम्मद इल्ला रसूल व क़ाल अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब दाइयुल हक मुबश्शिरुन नज़ीर हय्या अलस सलाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अब्बास अल्लाह कमरे बनी हाशिम, जो सखी अब्बास को मानता है बुलंद तिलावत फरमाइएगा। दरूद माशाल्लाह सबने पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा दरूद की फजीलत पे एक जुमला सुनो, उसके बाद जी चाहे तो पढ़ना मरना तेरा। मासूम रिज़ा फरमाते हैं, अगर कोई बंदा एक मर्तबा दरूद पढ़ के चुप हो जाए, एक बार दरूद पढ़ और चुप हो जाए, अल्लाह उसे 400 साल तक जिंदा रखे। मैं सुभान अल्लाह कहता हूं तो समझ ले, जो नहीं समझे बेदार होइएगा, एक सेकंड के लिए थके हुए जाकिर को सुन लीजिएगा। मासूम फरमाते हैं मौला तुम्हें सलामत रखे। मासूम फरमाते हैं अगर अल्लाह उसे 400 ईयर तक 400 साल तक जिंदा रखे, अगर वो दोबारा दरूद पढ़ दे, फरिश्ते कहते तेरा पहला सवाब नहीं लिखा गया, तेरा पहला सवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तूने फिर दरूद पढ़ दिया। जो सलावात सीख चुके हैं वो भी पढ़े, जो मुझ जैसे तालिब इल्म है बुलंद आवाज से दरूद तिलावत फरमाइएगा। ये रोशनी से पीछे वाला मोहल्ला, कोई शरी उजर नहीं तो फिर दरूद पढ़ ले,
अगर कोई शरीफ प्रॉब्लम है तो फिर ना पढ़े, अगर आता है तो बुलंद आवाज से मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पे दुरूद तिलावत फरमाइएगा। सब हजरात इजाजत है कि आपसे दो चार बातें कर ली जाए। आप सलामत रहिए, तो सब बोले सो या ना बोले सो मैंने परवाह नहीं, किबला का हुक्म है, वादा वफा हो गया। मैं जिक्र उस हस्ती का करना चाहता हूं जिसको अली भी अपना मौला कहता है। ना ना ये थकीदार ना चाहिए, ना बोलना दोबारा, ये थका हुआ लहजा ना पसंद है इस जाकिर को, ना ही मुझे थकीदार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये मेरे खान दाद के लिए नहीं तरसते, मातमी की दुआ के लिए तरसते हैं। या सैयदा तू समझ रहे हो, हाथ वो जिन्होंने बोला रिस्क दे रहे। हाँ 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 मेरा साईं को जो रखना जिससे मेरी बात समझ आ जाए, सारा बोलना मेरा साईं वक्त में हदीस पढ़ता भी है। उस बंदे की तो जिन्हें हाथ पता नहीं क्यों नहीं चाहे। हाँ 7 मुल्कों में फकत बीबी की वकालत के लिए कमी जा चुका, दाद के लिए नहीं, फिर दुआ के लिए अरसे रहा हूं। तू बड़ा से बड़ा सैयद होगा इस मजलिस के बाद, इस पेंड का लैंडलॉर्ड होगा, जिम्मेदार होगा, मखदूम होगा, बडेरा होगा, चौधरी होगा, राणा होगा, जट होगा, रजपूत होगा, तेरे मुरब्बे होंगे इस सफे अज़ा के बाद। ना 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 जिसे समझ नहीं आ रही बेदार होना, जब तू सफे अज़ा पे आ गया हम सब कमी है। अगर तूने अपने मखदूमी में, अपनी चौधराहट में, अपने लैंडलॉर्ड होने पे इतरा के हाथ नहीं उठाया, अब मैं तुझे बताऊं अली का नाम आए नबियों का सुल्तान उठा लेगा। जो हाथ नहीं उठा रहे किसको, जिसकी मां ने कदीर सुनाया है, इधर नबी ने कहा हाथ उठाना आमना के लाल की सुन्नत है। तो मेरे मौला की जूती की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ यहाँ पे और एक और बात, खाम ख्याली होगी दिल में कि तुम अपनी मर्जी से आए। ना मेरा भाई ना, अपनी मर्जी से यहाँ पे सांस लेना भी करूं अब अपने, मैं थका हूं मौला की मजालिस की वजह से, पुरसों की वजह से आप भी थके हैं, लेकिन वो अच्छा खतीब नहीं होता जो अपने बोलते हुए बजने की शिकायत करे। लेकिन आप बोलो चुप रहो, लेकिन मेरा मकसद है मैसेज करने का। I convey the message for मिल्लत इस्लाम है, स्पेशली न्यू जनरेशन। ये जो जवान बैठे ना जवान, ये मेरे मैसेज को पिक कीजिएगा और उसकी प्रीच भी कीजिएगा। बच्चों 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 लड़ना नहीं है, सिर्फ मौला की जाकिर को सुनना, लड़ना घर जाके, ठीक यहाँ पे सिर्फ मौला की मजलिस में जहाँ पे आए हुआ आखिरी बंदे, ये भाई से लेके खड़े हुए दोस्तों तक, अगर कलेजे में दम है, हाशमी का पहला जुमला तोहफा दे रहा हूँ, सुन लेना, उसके बाद मुझे पता चलेगा यहाँ पे मानने वाले कितने हैं, सोचने वाले कितने हैं। या सैयदा या आप सलामत रहे, इज्जतों का वारिस है मौला। पहला जुमला आपकी समाअतें की नजर कर रहा हूँ, मौला अब्बास का आलम ना बराबर होता मैं ये जुमला ना पढ़ता, लेकिन मौला अब्बास का आलम आएगा, इसलिए ये कमी मेहनत करके आपको सबक सुना रहा है। कोई ये ख्याल ना करे कि तकरीर नबी साहब की सजाई हुई ये मजलिस में सफे अज़ा में तुम अपनी मर्जी से आए हो। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, शफीयत झूले की कसम, तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, ना ही आ सकते हो। कैसे आए? जिसको अब्बास ने बुलाया वो चला आया।
अकेला पढ़ूंगा ना ही अकेला सुनूंगा। अब मैं देख रहा हूँ लाइट के पीछे वालों को, अगर नसीब चल गया तो उठते दौड़ जाओ। याद में मान जिन्हें कलंदर आखा है, कैसे ना हम कैसे माने अली? हमारे पास ना मिजाज, ना हमारे पास कोई इस तरह का तराजू, अली को कैसे माने? एक कलंदर किबरिया के नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। 2 सत्रें हैं सरकार कलंदर की, सिपासनामा कलंदर में, ठीक है जी। और कलंदर किबरिया की 2 सत्रें, उसके बाद ये गांव के ये बच्चों को चुप करवा, क्योंकि बच्चों से मुझे अक्सर मसला रहता है, तो वो बैठते भी मेरे आगे आते हैं और फिर वो आपस में पता नहीं क्यों उलझते हैं, तो मैं वो इश्क वाला बंदा, फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ ना। इसलिए मैंने आपको जवानों को आगे सहमत दी थी, लेकिन खैर बच्चे हैं, जब बर्थडे हो मेरी सुन लो तो थोड़ा जगह आ जाओ, वास्ता है बर्थडे आ जाओगे, ठीक है ना जी। वो बच्चे बस लड़ते हैं ना आपस में, तो मतलब सब सबक नहीं सुना सकते। भी ताकत नहीं, मैं अपने दोस्तों को अज़ादारों को बताऊं कि कलंदर क्या है। साईं जी पहला जुमला ठाडू साहब आप शायर हैं, दुआ फरमाइए। खड़ा हुआ मजमा कि सरकार कलंदर की बड़ी सिपासनामा कलंदर में 2 सत्रों में अली बादशाह लिखते हैं, वो कहते हैं हर आन किताब के नबूद जिक्र मुर्तजा लानत पर किताब बा साहब किताब कौन। सरकार कलंदर कहते हैं हर उस किताब पर लानत जिसमें अली लिखा ना हो, हर उस लिखने वाले पर लानत जिसमें अली लिखा ना हो। छेड़ा है मलंग तो सुन, सारा मजमा कीप साइलेंट हो जाए। आई डोंट केयर। तुझे नहीं बताया होगा किसी ने अली क्या है, तो मेरी टेंशन तो नहीं है, हम तो कलंदर के साजिद हैं, हम तो किबरियात का लिया हुआ अली पढ़ रहे हैं। हाँ बुल्ला से पहले दिन से नहीं बनी। अभी देख रहा हूँ किसका कलेजा मुट्ठी में है किसी ने लाके, और कौन किबरियात के प्रचार पे अपनी जान को वारता है, और शायद मदद कहने से पहले सर देना पड़ता है। 4-5 बंदे बोल देते हो मेरे चौको गुस्सा नहीं अली को मने दे। जवानी देनी पड़ती है अली को, खून देना पड़ता है या अली मदद कहने से पहले। अरे हमारा इमाम अली है, बेटियों से मसला पूछने वाला नहीं है। नसीब हो अली जब वलीला पढ़ने वाले लिखी गल अली हक के जरा सुचेद है उनके शजरे ते शाके पीछे वाला मोहल्ला मैं तुम्हें नहीं देख रहा, बाबुल हवाइज देखता है। मैं नहीं जानता, लेकिन बाबुल हवाई तुम्हारी नीयत भी जानता है, तुम्हारा नाम भी जानता है, तेरा शजरा भी जानता है। क्या मुश्किल के साथ तेरा शजरा भी बाबुल हवाई जानता है। अब पास तो मुरीदो जरा बिरार होइएगा, अली के नाम पे झूमने वालों या कलंदर किबरिया आदरी कनी बे हक के किबरिया। दोस्तों एक यहाँ पे मैंने आलिमाना दावा कभी नहीं किया, अभी कर रहा हूं। एक नहीं 1 लाख किताब दिखा सकता हूं। लोगों ने लिख दिया सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया, लिखा ना पढ़ा, बीए के सिलेबस में भी था, मैट्रिक में भी। ये जवान पढ़े लिखे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं कि सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। पहले इसका शजरा तो देखिए है कौन। सांगला है ना जी, हाँ सांगला हिल वालों थोड़ा जा हिल जुल करो। हाँ हिल जुल चंगी होती है मेरा भाई, आकर ना मुर्दे की अलामत है।
मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा। हाँ ते जड़ा मुर्दा होंदा है लोगों का होंदा है, साडे ते शहीद होंदा है। या मुश्किल कुशा, या मुश्किल कुशा। अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की क्या कहने, मैंने आलमाना गारंटी दी है ना। वजीरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, जाए पिदर हैं, इज्जत सैयदा की कसम, उनके पास नंबर, ये बच्चे मेरे भतीजे हैं, इनके पास नंबर। मैं अभी 2-3 दिन तेरे ही इसी इलाके में मौला का प्रचार कर रहा हूँ। किसी मुफ्ती से पूछ, आलिम से पूछ, जाकिर से पूछ, मुल्ला से पूछ, मलवाने से पूछ, मराजे से पूछ, मुफ्ती से पूछ, अपनी मर्जी के मुफ्ती वाइस खतीब मुफ्ती से पूछ के आ जाना। 2 दिन पहले 3 दिन पहले आज के दिन में सांगरा हिल की बस्ती में सज्जाद अली अकबर ने कहा है कि सिंध को किसने फतह किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने फतह नहीं किया। हालत वजह में झूठ बोलूं, अपनी बीबी मेरी जुबान फालिश गिराए, अगला जुमला हाशिम ना पढ़ सके, अगर तू सुन के बर्फ की तरह ठर जाए, तेरी अपनी मर्जी है। सिंध को उस्ताद के अहले बैत नहीं कलंदर ने फतह किया। पीछे वाले मोहल्ला 33 से ऊपर आओ, राइटी नंबर पास हो गया, अली का नाम या मुश्किल कुशा, या मुश्किल कुशा, जाती नंबर वाला ना 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 जात राती की कहना रहती, हाँ रहती नंबर लेके अली ने क्यों मनी है? असी क्यों, असी तो अली ने उदों ना मने जो तो अली ने किया है। एंजी है ना, यही बात है ना। मेरा पीछे वाला बिल्कुल खड़े हुए दोस्तों, आपको मौला सलामत रखे, मौला जवान का नसीब हो। आओ, दावा से जाद अली अकबर ने किया है, कलील पहाड़ से वजनी ना हुई बाबुल हवाई के झूले का सदका। अपना मुकद्दर होगा उस बंदे का जो कलंदर को भाग के उठ के चला जाएगा। ये कलंदर की बढ़िया कुछ शान को रहा है। इसके बाद कलंदर के मौला का जिक्र करोगे तो तेरे कलेजे में कलंदर उतर गया तो मौला भी उतर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी जो पेड़ है, ये गांव है, ये विलेज है ना, ये जाकर तुम्हारी माँ बाप को जवानियां नसीब हो। ये तुम्हारा पेड़ है, ये पेड़ वाले बैठे हैं, लैंडलॉर्ड बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं ना। अरे जिम्मेदार किसान से पूछ तो सही जाके कि वो जो बीज फेंकता है ना, बीज कोई दाना फेंकता है ना, पहले जमीन में हल चला के उसमें हलचल मचाता है। पहले हलचल मचाता है, पहले जमीन में हल चला के उसे सरखेज करता है, बाद में छट्टा फेंकता है। तो फिर मैं इतने याद होती बंदर जमीन में नहीं फेंकूंगा। अपने दिल की जमीन को जरा जरखेज कर, थक पे हो तुसा बस मेरे तुसा जिथा थके मैं थोड़े को फिर थका भी जी हाँ। देखो हमला मेरा रोटी खा जाती है तो मेरे को मिंबर नहीं लिखा आयो मेरी गुर्बत। लेकिन खैर आपकी मोहब्बत देखते हुए 2-4 बातें करता हूँ जिसके कलेजे में उतरे ये कमली की बात, फिर इतना बोला कि मेरा किबरिया राजी हो जाए। आप मैंने हालत वजू में कहा, मौला की शबी को शबी नहीं, मौला समझ के कह रहा हूँ, शबी कर मैं कह रहा हूँ, हुजरे में सरगोशी नहीं कर रहा, मैं फैमिली की ओर में बात नहीं कर रहा, मैं अपने घर में बैठ के बात नहीं कर रहा। ये जान अली को देनी है, मौलवी को नहीं देनी। मैं सभी के ललकार में सज्जाद अली अकबर सांगरा हिल के गयूर सुन्नी शिया मजमे से पहली बात कर रहा है कि सिंध को जो हज्जाज बिन यूसुफ के नामदीनी भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया, कलंदर ने फतह किया है। अब
मुल्ला को साथ ले। मैं होल्ड फेस के ऊपर आगे साफ ही है। मैंने देखा हमारी मस्जिद का पेश नमाज, ये दाढ़ी पाक, हाँ इतनी लंबी दाढ़ी। मैं साईं को सजदे के लिए गया तो वो धमाल डाल रहा हो। मैंने कहा मुल्ला तो पंजाब में हमें फतवे लगाता है कि मदद किसी से नहीं मांग रही, यहाँ पे नाच भी रहा है। चुप रहे, कलंदर ने बेटा दिया है। दमदम से ये सरदारी कलंदर शुक्रन 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 के अली वाले हैं। हम पहले तुम किसी दूसरे को शिया कहते थे, अब शिया को पकड़ के शिया कह रहे हैं अली हाथ के। हाँ मैं दरखास्त गुजारूं अपने मौला पापा की बारगाह में, ए मौला, ए नरजिस के बेटे, ए अली के 11वें लाल, ए वो ताली की फरजान, अपने रुख अनवर से पर्दा हटा और कायनात को अपनी जूती का सदका इज्जत बख्श और हर बेगैरत को गिरे बांध पकड़ के बता अली वाजिब होता है। तुम्हारे क्या बात है, अली वलील्लाह पढ़ने वालों की क्या बात है। अच्छा मैंने देखा माशाल्लाह अली के नाम पे तो उठते हो, झूमते हो, गुर्राते हो, चीखते हो। आज मैं अली के मौला का जिक्र करूं। पिछले आप जो मैं देख रहा हूं अंधेरे में, आपको आपके हाथ उठते हुए नजर आ रहे हैं। मखदूमा जो तेरे जिक्र में हाथ उठाता है, कायनात में किसी कमीने के आगे ना उठाना पड़े। जो जिक्र अली पे उठ जाए वो किसी बगैरत के आगे ना उठे। तो जो हाथ अली के जिक्र में उठा उसे फालज नहीं होगा। आपके क्या कहने, अली वलील्लाह पढ़ने वाले बाबा दुआ करेंगे डॉक्टर जी। और जवानों अली के मौला का जिक्र करें, परेशान तो नहीं। ये फिफ्थ में हिस्से वाले लोग थोड़ा सा मेरे लिए नहीं, जब जाकिर अली के मौला का जिक्र करे ना तो आप जाकिर से भी ज्यादा बुलंद होकर सुना करें। उसकी वजह सुन ले, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले कि ये जो है ना शिया, इनके जाती का नहीं, इनका भी यही ईमान है। इनके मजमे का यही ईमान है, यही ईमान है। आओ हम सुन्नी शिया इस्लाम की एक खूबसूरत चेहरे की दो आंखें ना थकते लोग। ठीक है, दाई का नाम सुन्नी, लेफ्ट का नाम शिया। अच्छा ये सीन और शीन को लुगत में भी बड़ा प्यार है, पहले सीन फिर शीन। यार ये तेरे बैठे हो सुन्नी हो बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुन्नी शिया भाइयों, लुगत में भी सुन्नी शिया इकट्ठे। अरे मुकस्सर जो कर ले, सुन्नी शिया इत्तेहाद नहीं टूटेगा। तुम्हारे क्या बात है, अली वलील्लाह पढ़ने वाले सुन्नी शिया इत्तेहाद कभी नहीं टूटेगा। हत्ता कि लोगों ने बम भी फोड़े, हजारों को गिराया, कभी दादा साहब पे हमला, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी पे, कभी हमारे जुलूसों पे। सुन्नी और शिया कल भी जिंदाबाद थे। हाय 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 मजमा पता नहीं हक पे। सुन्नी शिया आज भी जिंदाबाद है, मिलाद वाले भी जिंदाबाद है, मजलिस वाले भी खड़े हुए दोस्तों, मिलाद वाले भी जिंदाबाद है, मजलिस वाले भी जिंदाबाद है। हाँ हम शिया सुन्नी कभी भी नहीं टूटेंगे।
पाबंदी तो नहीं मौलवी तो लाख कोशिश कर हम सुन्नी शिया नहीं लड़ेंगे। मुझे यहाँ का नहीं पता, बेसिक खानपुर सिटी कटोरा, खानपुर कटोरा रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का वासी हूँ। बेसिक ठीक है। तो अहले हदीस हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका काम क्या है, अब तो गर्मी में आता जा रहा ना, तो वो पूरे रूट पे हमारा कोई ना 11 बजे से रूट शुरू होता है, रात 8 बजे तक पूरे रूट पे है अहले हदीस, सबील चलाते हैं पानी की। झूठ बोलने पे भी मेरी जुबान पे फालिज हो रहा है, अगला लफ्ज ना पढ़ो, दाद नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। बता रहा हूँ छोटे मियां सलामत रहो, उन्होंने ये अमल करके बता दिया, उनकी माँ भी शरीफ है, अब्बा भी एक है। ऐसे ही ना इश्क मुस्तफ़ा, आओ इश्क मुस्तफ़ा सुनने वाले मुस्तफ़ियों, पहला जुमला सांगला हिल की बस्ती गांव पेड़ में सजाद अली अकबर वो थका है पर अकेला नहीं थका। थकावट हो सकती है, गले में थकावट है, पेट है मेरी कमर में, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बतों को देख के मैं अपने पूरे कलेजे की कमाने खर्च करके पहला जुमला नबी वालों को तोहफा दे रहा हूँ, फिर अली वालों से पूछूंगा तेरा केड़ा मोल है। पहला जुमला जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही, खड़ा हुआ मजमा स्पीकर एजेंसी मौजूद है, रिकॉर्ड मेरी मजलिस हो रही है, अब से गुफ्तगू ना करता हूँ ना करूंगा। पहला जुमला सुन के मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे मुस्तफा का जिक्र करना चाहिए, ये जमीन में हलचल है या नहीं है। जिसकी जुल्फ़ा आशिक हो उसे यूसुफ कहते हैं, जिसका अल्लाह आशिक हो उसे मुस्तफा कहते हैं। मुश्किल कुछ हो, मुश्किल यहाँ से हाथ उठ हुआ, हाथ चार से जिना गई मोने मुस्तफा अली का भी मेरा है, वो पूजन मिसाल बन के, कलंदर तरीकन बन के, सलमान मोहब्बत बन के, अबू जफर यरूबल बन के, बिलाल अज़ान बन के, जुमला कबूल किया, मैं सबको वाह है। अच्छा आपको सीरत मुस्तफा सुनाऊं या नालैन मुस्तफा? अली हो कितने कर गए हो। अच्छा देखिए आप आ जाए माशाल्लाह, हमदन गोश आवाज समझ आ रही है आखिरी बंदे तक भी, बाबा तो खड़े हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा आप अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आई स्टैंड, मैं भी खड़ा हूं। हाँ थोड़ा सा जिक्र पाक होता है, ये जिक्र मुरीदों को जिंदा कर देता है, मुरीदों को जिंदा करता है। थोड़ा सा दिमाग हूँ, शबी की ज़ियारत की, एक सेब में को डेढ़ सौ तो मैं सही में सच असाद कमी है जी, असाद कमी है बात है जेड़े जिथे जिथे तक आवाज आ रही है, आओ नालैन मुस्तफा में जुमला सुनो। मेरे कमी की जुर्त क्या है कि मैं सीरत मुस्तफा बयान करूं, मेरे अंदर ये ताकत नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दी हूं मैं, या मुश्किल कुशा अल्लाह नहीं, इनका ज़ाती फर्क एक है अल्लाह। अच्छा जो हमारे सीरत निगार किताबें मिंबर में भी हैं, कुछ गाड़ी में भी हैं, कुछ दिल में भी हैं, कुछ दिमाग में भी हैं, कुछ आपके सामने पढ़ देता हूँ। हमारा नबी जो है वो 2 सेकंड बाद तारुफ कराऊंगा, लेकिन हमारे मुसलमानों का नबी सलाम उस पे जिसके घर न खाना था न पानी था, जिसका परनाला अंदर ही को बहता था, जिसके घर सोने की रिगेना बिछोना था, और वो बंदा ना बोले जिला इंज दा नबी कहा कि ये नबी वो सलाम उस पे जिनके घर न खाना था न पानी था न सोने का बिछोना था। और नबी की शादियां कितनी हैं? 13 शादियां पूछो तो 13, घर च बिस्तर नहीं, कमली मां का पुत्र गरीब सोना 4 बिस्तर में दिते हुसैन
पता नहीं क्या सुन रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं कि मैं हर बात को चीख के पढ़ूं तो आपको समझ आए, और कुछ आहिस्ता से भी कबूल कर लीजिए। तेरा ससुराल ने 4-4 बिस्तरे भी दिए हों, 13 शादी है ना बिकी, 13 ने घरों कहने पलंग ना देता, ठीक है, कहने बिस्तरा ना देता, कहना नबी है तेरा। सलाम उस पे कि जो 40 साल के बाद नबी हो, नाउज़ बिल्लाह। सलाम उस पे जिसका ऑपरेशन हो। छोड़ सारी बातें, आज शिया जाकिर से शान रसूल सुन। ना मेरी सीरत नाम उसे पढ़नी आती है, मुझे सीरत लोगों ने सूरतें भी लिखी कि नबी बड़े सोने हैं, किए हैं, उन्हें दे होठ गुलाब दे आंगुर रखते, अच्छा उन्हें दी नाक लंबी, अखा नरकसी, कौन सा इडियट पर्सन कि क्या तारीफ कर रहा है नबी की आंखें। आप मुझसे सुन, आंखें कैसी, मारे जल बहराइन ने जल तक यान, हाय 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 हाय, नबी की आंखों की तारीफ करनी है तो कुरान था। कुरान कहता है मारे जल बहराइन ने जल तक यान। अगर नबी के चेहरे की तारीफ करनी है, नबी के चेहरे को गुलाब की पत्ती से तशबीह ना देना, बल्कि कहना वल शम्स वज़्ज़ुहाहा, या सैयदा। नबी के पेशानी को कलम बंद करना चाहो तो नबी के पेशानी को सोना लिख ना देना, बल्कि कहना वल कमर इज़ा तलाहा। नबी की आबरूओं की तारीफ करना चाहो तो नबी के आबरू को भरोटे कहते न चले जाना, बल्कि कहना काबा कौसैन है। नबी के सीने की तारीफ करना चाहो तो नबी के सीने को अपनी कम इल्मी की वजह से नबी का ऑपरेशन ना करवाना। कुरान से दूसरा कुरान कहता अलम नशरा व सदरक। नबी के शहर की तारीफ करना चाहो तो ये ना कहना सारे जग नाल लग दिया चंगियां मदीने दिया भाग गलियां, ये ना कहना, बल्कि कुरान था ना, कुरान कहता ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद, कसम इस मक्का शहर की मेरे हबीब तू जो इसमें चलता है। अल्लाहु अकबर। अगर नबी की कमली की तारीफ करना चाहो तो नबी की कमली को कमली कह के कमली मान का पुत्र ना चले जावी, बल्कि कहना या अय्युहल मुज़म्मिल। नबी की चादर की तारीफ करना चाहो तो या अय्युहल मुदस्सिर पढ़ना। अगर नबी की अजमत पढ़ना चाहो, नबी के पैरों की तारीफ करना चाहो तो नमाज में खड़े होकर कहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर नबी की तारीफ करना चाहो तो ये ना कहना कि नबी 40 साल के बाद नबी बना, बल्कि कुरान से पूछना जब नहीं था नबी तब भी था, ना फूलों की महक थी नबी तब भी था, ना परिंदों की चहक थी नबी तब भी था, ना दरिया को जलानी थी नबी तब भी था, ना समंदर को तोलानी थी नबी तब भी था, ना हवा की तोलानी थी नबी तब भी था, जब भी ना था नबी जब भी था, जब तब भी ना था नबी तब भी था, जागरा सागरा हिल वाले जब था भी ना था नबी तब भी था। सारे हाथ चाके अवल खैर आखिर खैर बड़ा ऊंची आवाज जरूर दरगान है सारे अंदर। हमारा नबी 40 साल के बाद नहीं होता, हमारा नबी तब भी होता है जब आदम सामने बन रहा हो। हमारे नबी को जिब्राइल कभी सबक नहीं पढ़ाता, क्योंकि अली का शागिर्द है जिब्राइल। हाय 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 हाय। अरे जिसके शागिर्द का नाम जिब्राइल हो वो आमिना के लाल का उस्ताद कैसे हो सकता है? थक गया है। कुरान से पूछ नबी क्या है पिछले नहीं तो ये तुहाडा नारा दा रवाज है तो मारो, अगर है तो ना 12 मिनट बाद एक धमा दिता करो ताकि मेरे को यकीन पक्का रहे कि पिछले भी नबी आ रहे। मैं राजी, मेरा
से राजी हो। आज तुझे मैं बताऊं शिया जाकिर सांगला हिल में अली का नहीं, अली के मौला का जिक्र कर रहा है। अली के मौला को आज तुम शिया जाकिर से सुना कर नबी किसे कहते हैं। 40 साल बाद वाला तो तेरा होगा, मेरा नहीं है। सलाम उस पे जिसको हलीमा सादिया ने पाला था। मैं ना पहली बात है कि ये रवायत झूठी, ठीक है, आलिमा ने गारंटी। ये मेरे हाथ में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई, इमाम हम्बल 6 किताबें अहले सुन्नत की मोतबर दलील के तौर पे। मैं वो खतीब नहीं कि कल्ला पढ़ के तौर जावा ना, ये मिंबर वारिसों का है, बेवारिसों का नहीं है। मुश्किल अगर फिर जुमला मिंबर का आ गया है तो फिर सुनना सांगला हिल वाले मिंबर पे जुमला सुन आया है वो पलीते शाम के दरबार में जिसने नबी को अब्तरी के तानों से बचाया था। काश ना थकता जमाना, ये जाकिर बताता अली कहते किसे हैं। इब्न मुसाफिर यजीद का बाप, कायनात में उसका बाप कोई नहीं, उसका दरबार। मिंबर की बात कर रहा हूं, मिंबर की। जो अकीदे वाला है वो संभाले अपने आप को, जिसका कलेजा मुल्ला के कब्जे में है उठ के चला जाए, दावत फिक्र है उसे। जिसका स्टमक नेता पाव दूध बर्दाश्त नहीं करता, सज्जाद अली अकबर मन मिल रहा है। पहले मैंने बोल दिया है, काश कबीरी साहब बैठे होते, उनसे दुआ लेके मैं इस मजमे की पूरी गिरफ्त अपने हाथ में करता, फिर जुमला पढ़ता। लेकिन कबीरी साहब की माँ, बहन, बेटी, मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार, ये पूरे मेरे हम, मैं इनका हूँ। इनकी इजाजत से आपको जुमला सुना रहा हूँ। पलीते शाम के दरबार में 5000 हरामजादे बैठे थे। उन्होंने कहा जैसे अली का हसन आए, तुम कोई भी 2 दरबार होते हैं ना पर्दे को हटाने वाले, कोई पर्दा ना हटाए, बस खड़ा रहे। ये खुद पर्दा हटाएगा, अंदर आएगा, तू खड़ा होके अपना बाप बताना, तू खड़े होके अपने किस्से बताना कि तेरा बाप कितना लैंडलॉर्ड है। ओ मिंबर की अजमत पे सुनने वाले, तेरा बाप कितना लैंडलॉर्ड है। बस मुख्तसर ये कि जैसे मौला हसन की नलैन ने इस पलीत के दरबार में पहला कदम रखा, हवा चली, हवा ने पर्दे को उड़ाना शुरू किया। दरबार में पहला कदम रखा, हवाद नमक हलाल गुलाम बन के, या मौला हसन आपके दस्तरखान से रिस्क मिलता है, आपका ये कमी, आपकी नलैन का एक जुमला पढ़ना चाहता है। अब ये मुकद्दर वाले जाने और हसन वाले जाने, जो करीम करबला के मानने वाले हैं, बेदार होइए का। दोनों तरफ से हवा चली, तवज्जो, हवा चली। दरबान खड़े थे, हसन दरबार में, मौला दरबार में आए। अब फिर अकीदे वालों के लिए खास जुमला जो पहले अर्ज किया, ढंडू साहब आप दुआ फरमाइएगा। मौला चलते 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 एक जगह पे आए। लोग कहते हैं अपने भी कि इसने कुर्सी छोड़ी, मेरा ईमान नहीं कि नजस जगह पे, नजस माँ बाप की औलाद की कुर्सी पे हसन बैठ जाए। सांगला हिल वालों, अगर जहां पे जिंदा हो और मजलिस हुसैन में हो, इस सफे इंतजार पे हो, ये सांसें आ जा रही है, खून की गर्दिश हो रही है, और सच्चाई की बात को पचा के तू घर चला जाए, मैं मान नहीं सकता। कलेजा थाम, जुमला सुन। मौला ने ऊपर देखा, ये जो एक कुर्सी नाजिल हुई, जो बाद में आयतल कुर्सी के नाम से मशहूर हो गए। कुर्सी मशहूर हो गए। खैर मौला बैठे, मसलन मिंबर है ना, तो जो है
थके हो तो मैं तुम्हारे 1.5 करोड़ फीसद ज्यादा थी तुम्हारी मोहब्बत को देखते पड़दा पिया वरना ताकत ना है दीदी साहब का हुक्म आते ने हलाल दा बांध दे आ गया ते जेड़ा हलाल दा बैठे जरा हलाल दा बांध के सुने जेड़ा मौला नु मने नहीं वो हलाल दा जेड़ा सुचेड़ा उन पे चल नहीं रहा था या सैयदा खड़े हुए दोस्तों मारा तुम्हें सलामत रखे करीम करबला का बड़ा भाई नबी को अबतरी के तारों से बचाने वाला इन्ना अतईना कल कौसर की तफसीर मौला अमीर हसन अपनी आयतल कुर्सी वाली मसनद पे जागना मिंबर की बात की तो मिंबर पे आ गया है ये कमी मौला ने बैठ के इन सबको देखा एक बंदा खड़ा हुआ कहता है मेरा बाप मौला ने फरमाया वो नहीं है दूसरा है दूसरा खड़ा हुआ दबी दबी मेरा बाप मौला फरमाया तू भी किसी और का है कलेजा है सामने हिल वाले तुम्हारे समाज का तो फिर बर्दाश्त कर इसे सुनना है तो इसे बुलाना है तो फिर बता भी सही मैं मेहमान बन के नहीं आया आजादार बन के आया हूँ जो हुसैनी है वो बेदार होकर जुमला सुने ऐसे बदतमीज खड़े होते रहे कई लहजे बदलते रहे कईयों ने कहा मेरा बाप फलाना अमीर था ये था वो था जब सब हरामजादे मौला हसन के सामने अपने अपने नाजायज अब्बों का तारुफ करा चुके मौला हसन खड़े हुए मौला ने कहा इब्ने मुसाफिर इधर आ इब्ने मुसाफिर इधर आ यजीद का बाप जल्दी जल्दी चलता जी मौला से बात है मैंने अपने दादा का तारुफ नहीं करवाना हाय 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 वो खड़ा हुआ पिंडाल जो यहाँ पे है थोड़ा सा न्याज इस कमी का साथ देना मौला फरमाते हैं मेरा दादा कितना करीम था कितना रहीम था कितना शफीक था कितना आका था कितना दाता था उसका दस्तरखान कितना वसी था मैंने ये नहीं बताना और मेरे बाबा की जुल्फकार की झनकार से तू वाकिफ है मैंने अपने बाबा अली की जुल्फकार नहीं बतानी तेरे मजमे में अपने अपने अब्बाओं का तारुफ हुआ बस मैं हसन इन सबको छोड़ के तुझे कहता हूँ मैं हसन अपनी माँ ज़हरा से लेके हवा तक नाम भी बताता हूँ माओ के किरदार भी बताता हूँ तो मेरे कान में अपनी माँ का किरदार बता नसीब हुआ सब सब हाथ चाह के अरे मजमू में मैं तो अपनी अम्माओं का नाम भी बताऊंगा बड़े हुए दोस्त किरदार भी बताऊंगा तो फकत हिंदा का नाम बता क्या कहते सांगा हिल के गैरतमंदों के ये मिंबर वालों का है इसलिए ये कमी ने बात की आप सारे हमतन गोश नारे सुभान अल्लाह वाह वाह हो रही है सुन्नी शिया की अजमत का सलाम आपके अकीदों को सलाम लेकिन इज्जत सैयदा की कसम आपने बहुत अच्छा सुना लेकिन आपके हाथों में अगर वो पत्थर अजमत रिसालत याद है टूट गए हो याद है ना अजमत रिसालत सुनने वाले दोस्तों अमर हो गया मौला अब्बास इतनी बड़ी हस्ती है वैसे सुन लेंगे अब्बास मुझसे
हाँ? चले नबी का एक जुमला, फिर मौला अब्बास का फजाइल पढ़ता हूँ। आप हाथों में लेके बैठ जाए पत्थर कि सज्जाद अली अकबर औज़ु बिल्लाह करे सही। बच्चे मुझे देख के मुंह चिल्लाएं, 20 बंदे मुझे देख के सीटियां बजाएं, 15 बंदे मुझे लेके तालियां पीटे, सांगला हिलवा लो, ऐसे मजमे में मैं बात कर सकूंगा? जेड़े चुप हो तुम आ जाओ। हो सकता है मेरा भाई, ये कोई जिद तो नहीं हो सकता है ना जो किसी होवे हिम्मत, वट्टे लगते पे होन, आंडे वट लगते पे होन, लोग सीटियां बजाने पे तालियां ठुकेंदे पे होन, तो बंदा बोल ही जावे। ऐ जरा हौसला मेरे च ते नहीं, ठीक थोड़े च भी नहीं, किसी च नहीं होता। इंजी गल है। मैं कहूँगा गदीरी साहब कैसे मजमे में भेज दिया जो अक्ल ही नहीं रखते। हाय हाय हाय, ये शिकवा करूंगा ना खड़े दोस्तों, कहूंगा ना आप कीप साइलेंट हो जाएं, चुप भी हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं शिकवा नहीं कर सकता। आया पढ़ा हैदर वो गया मौलाना, ऐसा ही होगा ना। लेकिन टर्म कंडीशंस मैंने अर्ज की, आपके हाथों में हो पत्थर, आप मुझे लेके बजाएं सीटियां, बच्चे मुझे मुंह चिढ़ाएं, ठीक है ना। तो ऐसे मजमे में मैं खिताब आजमत रिसालत दिल में रखना, खिताब नहीं कर सकूंगा, बल्कि कहूंगा मौलाना इम्तियाज भाई, राजू भाई और सारे मेरे ही भाई हैं कि कैसे मजमे में भेज दिया जो अक्ल में नहीं रखते। ये शिकवा हक है, गिला हक है। मैं कहूँगा मुझसे मजलिस सुना, मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमे बिठाओ, सुनी शिया भाई और दोस्त बताओ, फिर जश्न भी पढ़ूंगा, मजलिस भी पढ़ूंगा, बरामदियाँ भी करवाऊंगा। ये शिकवे का हक है ना मेरा। कायनात कुर्बान करो आमिना के लाल तेरी नलैने पाक पे, जो मजमा मेरे मौला को मिला वो इसी तरह का था। जिस रास्ते से मौला गुजरते थे लोग वहाँ पे पथराव करते थे, वो बाश लोग सीढ़ियाँ बजाते थे, लोग पत्थर बरसाते थे, आप रोजनियाँ कूड़ा क्रिकेट डालते थे, लोग पूरे रास्ते को भर देते थे कांटों से। आमिना के लाल ने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। जागना जागना न्याज़ो शेर करके जागना, खड़ा हुआ मजमा भी जागे, सोया हुआ भी जागे, सारे पिता माए बहन बेटियां दुआ कीजिएगा। लेकिन आमिना के लाल ने कभी शिकवा नहीं किया। मुझे कैसे मजमे में भेज दिया, मुझे कैसे मजमे में भेज दिया। इमरान करना दुआ जुमला सुनना, मेरे मौला ने शिकवा नहीं किया। अल्लाह कैसा मजमा है तो सज्जाद अली अकबर हालत वजू में सांगला हिल के गैरतमंद मजमे को बताना चाहता है। पढ़े लिखे मजमे से वाह वाह कराना, सुभान अल्लाह कराना, नारा लगाना, इसे खिताबत का फन कहते हैं। अरब जैसे हराम ज़ादों को कलमा पढ़ाना, इसे मोहम्मद का मौजिज़ा कहते हैं। जी जी, अरब जैसे बदनस्लों को, अरब जैसे वहशी दरिंदों को, अरे जो बेटियों को दफन कर देते थे, उन जैसे कमीनों को कलमा पढ़ाना। पूछते क्या हो अब्बास की हैबत क्या है। ये किसने हुक्म दिया था मुझे? मनु नहीं पता। ए पिंड, ए गिराम, विलेज, चक, अब्बास बर्दाश्त करे से या नहीं? आपके आजकल दारी में आप मानी है थोड़ा मुझे कुछ शिया करना सवाल नहीं करेगा। अपना कहना केड़ी किताब विच लिखे, अपना किस किताब च लिखे, आओ किताब ना ले, दिल की किताब पे लिखा है। अभी पहली सतर है, अब अब्बास पाक वारिस के मुरीद हो। पूछते क्या हो अब्बास की हैबत क्या है, पहले मालूम करो जाके कि कयामत क्या है। हाय हाय हाय, अब हुक्म दिया है तो सुनो इस कमी से। पूछते क्या हो अब्बास की हैबत क्या है। खड़े हुए दोस्तों, पूछते क्या हो अब्बास की हैबत क्या है, पहले मालूम करो जाके कि कयामत क्या है। जिसने नजरों से रोका था यजीदी लश्कर, उसको तलवार उठाने की भी जरूरत क्या है। पीछे वाले की शिकायत
बात सुनने के लिए कम से कम अली जितना कलेजा चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं, हदीस नबी की ना हो, हम झूठे। नबी सरकार फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अंत सीरुल्लाह फी अल आलमीन, है अली तो आलमीन में अल्लाह का राज है। अल्लाह सही। काश गली ना होती, पंडाल बंद होता, ताकि मैं गेट वाली जगह पे ताला लगा के पूछता अब्बास किसका तारुफ मुझे हुआ है। हाँ, आप तो सारे इधर से भी भाग जाएंगे, इधर से भी भाग जाएंगे, लेकिन जो भगोड़ों के मानने वाले हैं उनसे शिकवा नहीं। जो करार के मानने वाले हैं वो करारी तरीके से सुनिएगा। हाँ हाँ, तवज्जो। अब आलमीन की हदें मुझे नहीं पता, कुरान की आयत पढ़ के साबित करूं? मेरे पास तो इल्म है नहीं, लेकिन मुझे क्या पता। या लन तसीरुल्लाह फी अल आलमीन, आलमीन की हद कितनी है? नबी ने फरमाया चुप रह, पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाय 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 हाय, जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत की हद है, वहां वहां अली अल्लाह का राज है। खड़े हुए अली अल्लाह का, अली अल्लाह का, अली अल्लाह का, अली अल्लाह का राज है। अब्बास अली का राज है। अरे एक राज को जमाना समझा नहीं, अब जिस राज में ये राज है, राज अल्लाह अली, अब राज है अली, अब्बास अली का राज है। मैंने नहीं पता कि मजमा चाहता की ये कमी दा इम्तिहान या बाबुल हवाइज दा करम, अभी पता चलेगा। अभी डायलॉग्स में ये फजाइल है, डायलॉग्स, वो मुआहिदा अर्श पे, जब तू मैं नहीं, तेरा और मेरा अब्बा आदम भी नहीं था, तब की बात है। बेदार हो थोड़ा जब बेदार हो, अगर मौला बात सुन रहे थे, थोड़ा जब बेदार हो तो सुन, फिर पता लगेगा। मैं ना साईं, नाम क्या भाई का? अली जी, हुक्म कर दिया आपने, लेकिन अब्बास सुनने के लिए मैंने पहले कहा अब्बास राज में राज है। हाय हाय हाय, अब मैं ना वो दरीचे खुल गए कि नज़ूल पढ़ूं या मौला की तलवार पढ़ूं। अगर आपने ये मौला की तलवार नहीं चलाने वाला राज सुन लिया तो फिर नज़ूल पढ़ दूंगा, नहीं तो फिर कभी जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह ने कहा ए हुसैन, तेरे 110 साल का जॉन भी लड़े, तेरा 96 ईयर का हबीब भी लड़े, तेरा 18 साल का अली अकबर भी लड़े। हुसैन यहां तक भी हद है, अली असगर भी लड़े। जाग जाग, अगर तेरे कलेजे में अब्बास की ठमक है तो तेरा अली असगर भी लड़े। हुसैन अब फिर राज, अली जी कर दुआ, माँ बाप को कबूल हो। ये जो विलायती जवान अज़ादार बेखसूर मात भी बैठे हो ना, आपसे दुआ नहीं लेनी, छीननी है। हाँ, और कानों के लिए नहीं, इसकी तस्कीन के लिए नहीं, इज्जते बाबुल हवाइज की शबी की कसम, अब्बास सखी की जरी पे खड़े होकर अब्बास से भीख मांगी है। मौला की जरी के ऊपर सजदा करके जिसने सखी से दाद ली हो, बंदों को उस हाशिम की ताक नहीं पड़ती। बस ये हुक्म था अली जी का, जहां आए हुए मेहमानों कलेजे को संभालो और जुमला सुनो। ए हुसैन, तेरा सब लड़े, तू भी लड़, जॉन भी, इब्न मुजाहिर भी, मौला मोहम्मद भी, तेरा सईद भी, सब लड़े इल्ला अब्बास, इल्ला या अल्लाह, इल्ला तो हम तुझे कहते हैं या सैयदा, इल्ला अब्बास, अब्बास ना लड़े।
عباس فضائل فضائل فضائل. اب ذات وجود، اس سے ذرا تھوڑا سا اتارنا اپنے کلیجے میں. اے حسین سب لڑے، جوانوں سے بات ہے، الا عباس. سائیں جی کے بیٹے توجہ، الا عباس. عباس نہ لڑے. کہا کیوں؟ کہا اگر عباس لڑا، سائیں جی دعا مات بھی کھڑے ہوئے دوستو، اگر عباس لڑا، توجہ سنی شیعہ کا مجمع، اگر عباس لڑا، عباس لفظ وجود حیات کو ختم کر دے گا. آپ شاعر ہیں، آپ نے اس لیے زیادہ مزہ کیا ہے. عباس لفظ وجود حیات کو ختم کر دے گا. اللہ کہتا میری بھی تو ذات ہے، میں بھی تو ذات رکھتا ہوں. اب یہ ڈائلاگ چل رہے تھے، اتنے میں عباس کریم کی روح آ گئی. اللہ نہیں لڑتا عباس، اجر کیا دے گا عباس کو؟ جاگنا حلال شادو، عزت سیدہ کی قسم ہے. آواز پروردگار رہی ہے عباس، اس سے بڑا اجر کیا ہو پوری کائنات میں بغیر ہاتھوں کے؟ یا میری حکومت ہوگی یا تیری حکومت. جو ہے یا کوئی نہیں، جس کا ایمان ہے علی حق ہے. عباس راز ہے علی کا، اس کے پاس اولاد نہیں تو 9 اولاد. باب الحوائج کا علم آ رہا ہے. اگلے سال سے پہلے پتر نہ ملا تو سیدہ کو سجدہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں. رکھ دے. بیٹا نہیں بیٹا مانگ. ابھی نہیں، جب میں کہوں گا ابھی 5 منٹ ہے. بیٹا نہیں تو بیٹا مانگ، دھی نہیں تو دھی مانگ، گھر نہیں تو گھر مانگ، شفا نہیں تو شفا مانگ، کچھ بھی نہیں تو سارا کچھ مانگ. اگلے سال سے پہلے سخی کا صدقہ تجھے پتر نہ ملا تو پھر تیرے مانگنے میں شک ہے، ان کی عطا میں نہیں. تجھے گھر نہ ملا، جو کچھ مانگ سکتا ہے. بالخصوص کھڑے ہو دوستو، آؤ ہم کلندر کو سلامی پیش کریں، اپنی دعا منت حاجت دل میں رکھ. یا اللہ ان سب کمیوں کا یہ کمی نمائندہ بن کے تجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ جس کے پاس بیٹا نہیں بیٹا دے، گھر نہیں گھر دے، شفا نہیں شفا دے. حبیبی صاحب کے بچوں کی خیر ہو، ان کا سایہ ان کے اوپر رکھنا، اہل علاقہ کی خیر ہو. ہم سب کمی تجھ سے دعا مانگتے ہیں. باب الحوائج اصغر کا واسطہ دیتے ہیں، باب الحوائج عباس کا واسطہ دے کے اے عباس تجھے تیرا ہی واسطہ. بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد، بیماروں کو شفا، مقروضوں کا قرض ادا، جس کے پاس کچھ نہیں اس کا قرض ادا ہو. پورا پنڈال میرے ساتھ کمی کے ساتھ مل کے، بوزر مزاج بن کے، سلمان قیمت بن کے، ابو ذر غفاری عقیدت بن کے، بہلول شریعت بن کے، کلندر حق بن کے، بلال آزاد بن کے، لال لال کلندر. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں باب الحوائج کی عزت پر. عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا. یا سیدہ وہ پنڈا لے تھوڑی گلی محلے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے نا، تسا انہوں جا کے یہ نہیں پوچھ دے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تو سنی ہے یا تو شیعہ ہے. آپ جا کے پہلا سوال کرتے ہیں اسے پانی پلاؤ. ای کو بڑھاتے نہیں، پہلے ٹھیک پھنساؤ، اسے پانی پلاؤ. تو سنی ہے یا شیعہ میں کسی کا مذہب بدلوا میں نہیں آیا. اسی شیعہ کو جھلی کو پاگل کو کملی قوم نہیں. اسی اپنی ماما دیا بہن نہ لے کے گلی وچ چوک وچ مجلس سجا کے بیٹھے ہیں. ساڈا بڑا نقصان ہو گئے. صدات غیر صدات، وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو مجھ سے پہلا سوال جا کے یہ نہیں پوچھتے سے کہ کون ہے، مذہب کیا ہے، سنی ہے شیعہ ہے، کہتے اسے پانی پلاؤ. پانی پی کے وہ ہٹتا ہے. پہلا سوال افسوس کا، کیا ہوا؟ شاہد صاحب دعا فرمائیے گا. پنجابی جی ہوا کیا ٹھیک ہے؟ واٹ ہے یہی لفظ ہے نا.
हाय, अफसोस का सबसे छोटा लफ्ज है क्या हुआ। करीम करबला 71 जनाजे उठा के कह रहे हैं अब्बास मर गया अली अकबर जुदा हुआ, अब्बास मर गया अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। रोना मुकद्दर दा आंसू नसीब दा जरे रोमन भी आए 2 रातां दा मेहमान है गरीब। एक रात लंघाई बैठो दूसरी रात कल आमना लिए आजाद आ जो कल रात आ रही है ना, कल रात, कल गाजी पहरे पे होगा, ज़ैनब पर्दे में होगी, उसके बाद आएगी शाम गरीबा, ज़ैनब पहरे पे होगी, गाजी किनारे पे। या सैयदा कर माता मगर कर सक रहे थे, जरा शीरे सीने पे हाथ मारे, जरा सुनिए हाय करे, अगर दो में काम नहीं कर सकते सजाद अली अकबर ली बातियां करो, मैं भरी जवानी मर जावा, मैं जुमला कैसे छुपाऊं। आजादारो कौन है अब्बास, मेरे कमी की जरूरत ही नहीं, मैं शहादत पढ़ सकूं। आए हुसैन के पास आके कहा लड़ने की नहीं तो मरने की इजाजत दे दे। मरहबा मरहबा मरहबा। आजादारो भी 2-4 जुमले पढ़ने हैं मुझे, रोना नहीं आ, सर झुका, सारे हाथ बांध के या सैयदा अदरी कनी बेहक के सैयदा शहजादी ज़ैनब फरमाती है, छठे इमाम का भी ये फरमान है सबसे अच्छा अमल रोना, उससे अच्छा अमल है रुलाना। अगर बंदे रोवे भी ना रुला भी ना सके, रोने जैसी शक्ल बना ले वाजिबुल जन्ना, अल्लाह उससे जन्नत देगा। रोना नहीं आता जरूरी नहीं, जनाजा तुम सब ने पढ़ा है मेरे भाई, जब मैं कहूँगा तब लाइएगा, जनाजा तुम सब ने पढ़ा है। जवानों मौला तुम्हारी जवानी वालदैन को नसीब हो, जनाजे में सब बंदे तो नहीं रोते, 5 या 6 चीखे मार के रोते हैं। तुम पूछने पे मजबूर हो जाती हो ये मरने वाले का क्या लगता था। लोग कहते मरने वाले का बेटा था, ये मरने वाले का भतीजा था, ये मरने वाले का कुछ लगता था। आज इस अंदाज से अब्बास को रो लेना, जब जिब्राइल इमाम ज़मान के पास जाए जाके कहे ज़ाकिर पढ़ रहा था, अज़ादार रो रहे थे, ये तेरे क्या लगते हैं। अगर मेरा मौला कह दे ये मेरे अपने हैं, आजादारो बस जैसे कैसे मौला हुसैन ने कहा जा अब्बास, जिसने तुझे पाला है उस ज़ैनब से जाके इजाजत ले, माफियों मुझे माफ करना, अभी नोहा कुना होगा, अभी मातम होगा, अभी पुरसा होगा, मैंने तो छोड़ दिया सारा मुसाल। अब्बास है शहजादी ज़ैनब के पास आके कहा मुझे इजाजत चाहिए। बीबी ने फरमाया सबको मिलेगी पर तुझे नहीं मिलेगी। मौला मिजाज सैयदा को समझते थे, चुप करके खड़े हुए, कहा बीबी ये जो खेमे के दरवाजे पे रो रहा है ये किसका बेटा है। बीबी ने फरमाया अम्मा ज़हरा का, तो मौला रो के कहते हैं फिर मखदूमा अम्मा ज़हरा को क्या जवाब देंगी, मेरा कुर्बान करवा दिया, अपना बचवा लिया। मखदूमा तड़पी खड़ी कही कहती अब्बास मैं तुझे कुर्बान करती हूँ हुसैन पे, अब मेरी मौत है मैं उसमें मिन्नत करके माफी मांग के जुमला पढ़ता हूँ। खैमे के दरवाजे पे दाएं शहजादी ज़ैनब खड़ी हुई, बाएं हुसैन गरीब खड़ा हुआ, दरमियान में से अब्बास चला। अब जैसे अब्बास चला रावी कहता है दोनों बहन भाई एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे दोनों के जिस्म से रूह निकल गई हो। तेरा बड़ा नुकसान हो गया है, करबला में गाजी मारा गया है, ज़ैनब उजड़ती पई है, मौला हुसैन की कमर झुक गई है। आजादारो रावी कहता है एक अभी नहीं सही, 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट और 1 मिनट और न्याज सुन देखो मेरे बैठो सही, बैठ जाओ ओ भाई, बैठ जा बीबी का मिसाल क्या सही जगह
ये सकीना से लेकर रुकैया तक ज़ैनब व कुलसूम रो रो के कहती है, वो हमारे पुरखों का वारिस गाजी, और तू ना जा, तेरे जाने से हमारा पर्दा। तेरिया बैना तेरे गाजी मौला के जाने के बाद अज़ादारो अभी लोहा गुनाह हो रहा है। ये सबसे पहला लोहा मौला हुसैन ने पढ़ा, कहा गाजी जो तेरे पहरे में खाक पे सकीना सोती थी, आज के बाद शिमर सोने नहीं देगा। तूने दे पासे तेरे चले आए, ऐसा जान गया तो बेआसरा भैड़ा दादीर होने को बस चले शबीर दीपा से गए दरते जदों खंजर शमूर चलाना है। अज़ादारो मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद ये आखिरी मजलिस हो इस कमी की। अज़ादारो शिमर ने बीबी ज़ैनब के सर से चादर उतारी, नेज़े पे बुलंद की, ये दरिया की जानिब जा रहा था। बीबी ज़ैनब खेमे पे आके देखती है कि ये चादर कहाँ लेके जा रहा है। मेरी माँ बहनों माफ करना, इस कुत्ते के बच्चे ने मौला अब्बास के लाशे पे ज़ैनब की चादर को गिराया। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे एक भाई को तो कफन मिला। ज़ालिम में चाहे वीर न मिलती मंज़िल जावे, अकबर दी मौत दी मारी होई, तेरी ज़ैनब उठ को ले जावे, तेरे पुत्र बीमार बहारी नो इस मंज़र खून रवाना है। अज़ादारो हर सर लो के सीना पे बुलंद था। कभी सवाल करे ज़ाकिर से, अब्बास का सर कहाँ था? अब्बास के इस कान में नेज़ा मार के दूसरे कान से गुजारा गया, रस्सी डाल के घोड़े के गले में डाला गया। अब्बास का सर लो के सीना पे बुलंद क्यों नहीं होता था? आवाज आई, ज़ैनब का सर नंगा। तूने रिद पास तेरे चले आए, ऐसा जान गया तो
گئے تھے جدو شور چلا آخری یہ جملہ پڑھ رہا ہوں اگلے سال کون زندہ رہے کون مر جائے مجھے معاف کر دینا زیادہ رانے بچوں میں کربلا کون ہے حسین جب حسین چلتے تھے حسین کی سواری عباس سجاتے تھے اب جب سواری مرتجیز کے پاس آئے کہا عباس تو کہاں چلا گیا عباس تو اپنے بھیا کو سوار نہیں کرائے گا تیرے